So today we are going to learn chemical equilibrium. In the last class we did rate of reaction, we did speed of reaction, okay? And we discussed how to like what are the factors on which the rate of reaction depends. So we discussed concentration, temperature and pressure and also the catalyst. But today we are going to discuss direction of reaction, chemical equilibrium. What do you mean by the term equilibrium? Equilibrium का मतलब होता ये है कि when you have the reaction in which the amount of reactant is equal to the amount of product. In the last class, I gave you an example, if you remember, let's suppose we have a seesaw in which you can see we have a two persons having the same weight that is 10 kg and 10 kg. Obviously, it's not going to move. It's not going to move because it's going to be balanced. So means that I can say this state is called equilibrium. This state is called equilibrium. Equilibrium. Okay. But the thing is that we are generally discussing dynamic equilibrium. We have the different term that is called dynamic equilibrium. Do you know what is dynamic equilibrium? There is a difference between a simple equilibrium and a dynamic equilibrium. This diagram, as you can see, this is called simple equilibrium. Okay. अच्छा, dynamic equilibrium क्या होता है? When the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. The rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. What does it mean? Okay, simply I would say कि you can see इसमें हमारे पास water है, okay? As you can see, it's full of water. As you can see, it's full of water, okay? So then particles are moving from right to left. The particles are moving from right to left. मिसाल के तौर पर अगर यहां से यहां 10 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, सो एट द सेम टाइम 10 मॉलिक्यूल्स यहां से यहां भी जा रहे होंगे. इतना स्मूथ हो रहा है ये काम कि यू विल सी कि देयर इज नो चेंज. यू विल सी देयर इज नो चेंज. देयर इज नो चेंज. यू विल सी देयर इज नो चेंज. बट in fact, if you are going to use a microscope, so you will see कि यार particles are moving. You will see कि particles are moving from right to left or left to right. Okay, the particles are moving basically. So the time would come कि this is called dynamic equilibrium. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब आपका बिल्कुल स्मूथ चेंज हो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. ओके, अगर 10 मॉलिक्यूल्स आपके लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं एट द सेम टाइम 10 मॉलिक्यूल्स आपके लेफ्ट टू राइट भी जा रहे होंगे, लेकिन इतना स्मूथ ये काम हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन चेंज हो रहा है. सो इस स्टेट को हम पता है क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम. मजे की बात आपको मैं बताऊं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो टर्म है इज नॉट स्पेसिफिक टू द अमाउंट. मतलब होता है वर्ड होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, बट ऐसा नहीं है. रिएक्टेंट का अमाउंट अगर कुछ भी हो और प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ भी हो, डजंट मैटर. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ 15 पार्टिकल्स हैं, यहाँ 10 पार्टिकल्स हैं, ओके, and the reaction is going to like the reaction is in progress, the particles are moving. मैं assume कर लेता हूँ कि right away the two particles are moving from left to right, only two particles. अब at the same time दो पार्टिकल यहां से यहां भी आ रहे हैं. बहुत स्मूथ हो रहा है ये काम. आप देख रहे हैं कि जब ये काम इतनी तेजी से हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि पार्टिकल्स ना यहाँ से कम हो रहे हैं ना यहाँ से कम हो रहे हैं. जैसे ही यहाँ से दो पार्टिकल निकालते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, दो पार्टिकल यहाँ से वहां चले जाते हैं. सो इंस्टेंटली
यानी आप देखेंगे कि कोई चेंज ही नहीं नजर आ रहा होगा, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपने देखा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो जब ये दोनों का रेट सेम हो जाए, दोनों का रेट सेम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ इस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, याद रखना। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में इस्टेब्लिश होता है। ओके, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में इस्टेब्लिश होता है। इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो इक्विलिब्रियम की टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, सिर्फ इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की टर्म हम यूज करते हैं। बाकी इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये याद होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। सो इक्विलिब्रियम इज ओनली established in a reversible reaction. Equilibrium is only established in a reversible reaction. Remember, if you have a reversible reaction, you have equilibrium. If you don't have reversible reaction, so there is no any equilibrium. Okay, और स्पेसिफिकली हम जो इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे होते हैं, डायनामिक। सो if I ask what is dynamic equilibrium, you know what you would say, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो, so then I will say that this is called dynamic equilibrium, and it's completely independent of the amount. I will not consider what the amount you have, but I will see the change is smooth or not. I will I will see the change is smooth or not. Okay, if the change is smooth, so yes, I will say that this is the dynamic equilibrium. यानी कि अगर आपके 5 particles left to right जा रहे हैं, at the same time 5 वापस भी आ रहे हैं, so this change is very smooth. This is called dynamic equilibrium. This is called dynamic equilibrium. Okay, यानी अगर मैं इसको आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, लेट सपोज आप लोग भी बस में बैठे हैं, दिस इज द बस, और मैं भी बस में बैठा, दिस इज द बस। जस्ट अज्यूम कि एसी चल रहा है और ब्लैक कलर के शेड्स लगे हुए हैं। आई कैन सी यू एंड यू कैन सी मी, एंड द buses आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब आप मुझे देखेंगे और मैं आपको देखूंगा, ऐसा लगेगा जैसे हम दोनों रेस्ट में हैं, ऐसा लगेगा जैसे हम दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन एक्चुअल में वी बोथ आर मूविंग, लेकिन एक्चुअल में बोथ आर मूविंग, क्योंकि इतना स्मूथली ये काम हो रहा है, इतना स्मूथली ये काम हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे हम रेस्ट में हैं, बट इनफैक्ट हम रेस्ट में तो नहीं होंगे ना। तो मैं रिएक्शन को भी इसी से रिलेट करवा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इनमें यही हो रहा होता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जितना अमाउंट आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतना ही अमाउंट अगर आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि द रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, so it's all about the change, it's all about the rate of change. It's not like it's not depending on the number of particles कि मेरे पास reactant में कितना particle है और product में कितना particle है. No, I will never consider the amount of reactant or product. I will only see कि how the change is like the change is very smooth.
द चेंज शुड बी वेरी स्मूथ, कि रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट में आ रहा है और प्रोडक्ट से जब वो रिएक्टेंट में जा रहा है तो वो स्मूथ है, वो सेम है. If this is the same, तो I would say कि the reaction is at dynamic equilibrium. Otherwise, there is no any dynamic equilibrium in that reaction. Okay? एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए योर कंटेनर शुड क्लोज, योर कंटेनर शुड क्लोज. क्या मतलब इसका? भाई मिसाल के तौर पर दिस इज द कंटेनर एंड यहां पर मैंने एक होल कर दिया, लेट सपोज. ऑब्वियसली द लिक्विड विल रन अवे फ्रॉम हियर. तो जब सारा लिक्विड यहां से निकल गया तो वापस बैक कौन होगा? भाई अगर 5 पार्टिकल्स यहां से यहां आ रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे होल कर दिया छोटा सा, सारा तो यहाँ से निकल गया, तो फिर वो वापस कैसे जाएगा 5? तो ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ ना, है ना? तो आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों होना चाहिए. मीनवाइल at the same time it should go from left to right and it should go from right to left. तो आप बोलोगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, तो आप बोलोगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. अदरवाइज नो, देयर इज नो डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो ये कुछ कंडीशंस हैं डायनामिक की. नंबर 1, द कंटेनर शुड क्लोज, the container should close and you must have a reversible reaction, and you must have a reversible reaction. अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है, सो व्हाट आर यू डूइंग? ऑफ कोर्स देयर इज नो एनी इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो डायनामिक तो बहुत दूर की बात है. तो रिवर्सिबल होना जरूरी है. ओके, चलें जी. फिर हम आते हैं, अब इनका मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूं. इनके साथ ना इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पता है क्या प्रॉब्लम है? इनका प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट गेट योर 100% प्रोडक्ट. अब आप बोलोगे ये क्या बात कर दी, अब आप बोलोगे ये क्या बात कर दी. मैंने क्या बोला? यू विल नॉट गेट 100% प्रोडक्ट. क्यों भाई, क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है. ओके, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है. क्या मतलब रिवर्सिबल है? जैसे ही प्रोडक्ट बनता है फिर पीछे आ जाता है, फिर प्रोडक्ट बनता है फिर बैक हो जाता है, फिर बनता है फिर बैक हो जाता है, फिर बनता है. अबे यार ये तो मुझे 100% मिल ही नहीं सकता भाई. कंटेनर तो मेरा कभी फिल हो ही नहीं सकता अगर तुमने उसमें होल किया हुआ है. Like, can you expect that you are having your container with 2 to 3 holes, and you are expecting that if you are going to add more amount of water, so the container would fill after a while? No, it's not possible. क्यों? क्या आपने उसमें होल किया हुआ है. वो जो जैसे ही आप उसमें डालते हो वो नीचे से निकल जाता है. क्या फायदा फिर? So you are expecting the same from here. के are you expecting that you will be getting your 100% product? अगर आपको 100% प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है, बस दैट्स इट. लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन तो ऐसे नहीं होते ना. रिवर्सिबल रिएक्शन तो डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम. योर रिएक्टेंट कैन चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट कैन चेंज इनटू द रिएक्टेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल, represented by double arrow, represented by double arrow. So reversible reaction के लिए, ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये याद रखिएगा. ओके, तो so the problem with these reaction is that we cannot get 100% product. This is the problem with that. यही प्रॉब्लम है इनके साथ कि we cannot get 100% product. तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मैं क्या करूं? There is a solution. There is a solution. एक साइंटिस्ट था जिसने इसका सॉल्यूशन दिया, नेम्ड ले चैटलियर प्रिंसिपल. उसका नाम क्या था? ले चैटलियर प्रिंसिपल. ले चैटलियर प्रिंसिपल. उसने हमें इसका हल बताया कि आप अगर ये करोगे तो आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. if you want to have more than 60% product, so what am I supposed to do? So the Le Chatelier has given the solution. If you want to get more than 80% product, so you can do it. So we have a solution for you. तो उसने आपको solution provide किया. Okay, किसने? Le Chatelier ने. So what we are supposed to do
तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी ले चैटलियर की? के ही सेड के जो है, यू कैन सी, if the equilibrium of a reaction is disturbed, so the reaction will tend to oppose the change. So the reaction will tend to oppose the change. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं कहूं एक पैर पे खड़े हो जाओ, अगर मैं आपको कहूं एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाओगे आराम से। फिर मैं आपको हल्का सा धक्का दूं, तो आप गिरने लगोगे। लेकिन आप अपने आप को गिरने नहीं दोगे, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे जितना आपसे हो सकता है, एज मच एज यू कैन। ऐसा ही है ना? आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। तो रिएक्शन भी ऐसे ही होते हैं, जब तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हो ना, तो रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करता है, अपने तुम्हारे चेंज को अपोज करेगा, वो तुम्हारे चेंज को वो अपोज करेगा। ओके, तुम्हारे चेंज को वो अपोज करेगा। जैसे एक स्प्रिंग है, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था तो अच्छा खासा इक्विलिब्रियम पे था, बेहतरीन। तुमने बिला वजह में उसको स्ट्रेच कर दिया, मीन्स कि तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया ना, मीन्स कि तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया ना। तो अब वो क्या करेगा? अब उसकी जॉब क्या है? नाउ हाउ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू, हाउ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो द स्प्रिंग विल try to come to its original state. Of course, the spring will try to come to its original state after stretching. तो यही तो रिएक्शन करता है। कि क्या बोल रहा है ये? अगर तुमने रिएक्शन को डिस्टर्ब किया, so the reaction will tend to change. Reaction will tend to oppose the change. So how it happens? Let me tell you this. So the first factor is called concentration. So the first factor is called concentration. Concentration means what? It's the amount of substance. It's the amount of substance. Okay. अच्छा, ये बात ये सारी करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑलवेज द थिंग्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ऑलवेज द थिंग्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, always the things move from higher to lower, always the things move from higher to lower, higher to lower, higher to lower. ये याद रखिएगा, आगे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्या कहा मैंने? always the things move from higher to lower, higher to lower, याद रखिएगा। ओके, तो अब होता क्या है इसमें कि ये रिएक्शन लिया मैंने ये रिएक्शन लिया, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. I am going to increase the concentration of SO2. I am going to increase the concentration of SO2. Okay? ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई है, this is going to represent the concentration. Okay? शॉर्टकट टर्म यूज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका मैं बिल्डअप करना चाह रहा हूं। If we are going to increase the concentration of SO2, मैंने आपको क्या बात सिखाई कि always the things move from higher to lower. पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, याद रखिएगा, ये नेचर है। नीचे से ऊपर नहीं जाता। आप लोग बोलोगे सर हमारे घर में तो नीचे से ऊपर जा रहा होता है। भाई आप मोटर चलाते हो, आप एक्सटर्नल पावर यूज करते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। हम बात कर रहे हैं ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। तो वो तो ऑलवेज, ऑब्वियसली ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, obviously always from higher to lower, that's it, always from higher to lower. Okay, तो आपने जब SO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, आपने जब SO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, तो SO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या हुआ? आपका जो रिएक्टेंट साइड था वो हायर पोटेंशियल पे चला गया, वो हायर पोटेंशियल पे चला गया। ओके, हायर पोटेंशियल पे चला गया, और प्रोडक्ट आपका लोअर पे है, और प्रोडक्ट आपका लोअर पे है, और प्रोडक्ट आपका लोअर पे है। ओके, तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से आपका रिएक्टेंट कहाँ चला गया? हायर पोटेंशियल पे। किस पे चला गया? हायर पोटेंशियल पे।
और प्रोडक्ट आपका किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे। ओके, क्या होगा, द रिएक्शन will move to right hand side. The reaction will move to right hand side. Okay? तो जब राइट पे मूव करेगा तो यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट. यस, यू कैन गेट मोर प्रोडक्ट आफ्टर डूइंग दिस. तो ये ली चैटलियर ने बताया हमें, ये ली चैटलियर ने बताया हमें. ओके, ये ली चैटलियर ने बताया हमें कि यू कैन हैव मोर प्रोडक्ट. But you have to change some conditions. You have to change the concentration. You have to change the temperature. You have to change the pressure. So after doing this, you can get your desired product. You can get your desired amount of product. That's it. Okay. तो अगर आप SO2 को increase करोगे, so means that you are going to increase the concentration of the reactant side. Concentration of the reactant side. Okay. जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड आप यूज करोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्टेंट हायर पे हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका लोअर है, तो हायर टू लोअर मूव करेगा, हायर टू लोअर मूव करेगा, मींस फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू लोअर, लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड, यानी यहां से यहां आ रहा है ना, यहां से यहां आ रहा है, मींस दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, सो लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड फॉरवर्ड. फिर मैंने क्या बोला, SO3 को, मतलब कि SO3 को मैंने कम कर दिया. तो व्हाट डज इट मीन, प्रोडक्ट आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया, प्रोडक्ट आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया. मैंने तभी आपको पहले एक बात बताई, एक चीज आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है, always the reaction moves from higher to lower, higher to. जब आपने SO3 की concentration को कम कर दिया, so means that ये lower पे आ गया, ये किस पे आ गया, lower पे आ गया, ये तो higher पे था, तो दोबारा से फॉरवर्ड, क्योंकि हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ऑलवेज रिमेंबर हायर टू लोअर. अगर जग खाली है तो पानी आएगा, अदरवाइज पानी नहीं आएगा. पहले से पानी भरा, how can you expect that you can add more amount of water? It's impossible. It's impossible. So the things always move from higher to lower. अब पानी पहले से भरा हुआ है, पहले से higher है. So how can you expect that the things are moving from lower to higher? No, it's impossible. Always the things move from higher to lower, higher to lower, higher to lower. Remember, higher to lower. तो जब आपने SO3 की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया तो ये लोअर पे चला गया ऑटोमेटिकली, ये हायर पे है, तो हायर टू लोअर मींस फॉरवर्ड हो गया, मींस फॉरवर्ड हो गया. ओके, सेम एज अगर अब मैं SO3 को इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं मैं, इंक्रीज कर दूं. SO3 की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया. SO3 की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया. सो ये हायर पे आ गया, ये लोअर पे है. इट मींस दैट हायर टू लोअर, बैकवर्ड, क्या बोले, बैकवर्ड, बैकवर्ड हो जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड हो जाएगा रिएक्शन. Okay, so you only have to identify the direction of reaction, whether the reaction is moving in forward direction and whether the reaction is moving in a backward direction. This is very important to know. Okay, forward backward. Okay, चलें जी, ये देख लो जरा रिएक्शन. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, अब्दुल्ला बताइएगा जरा, अब्दुल्ला, if I am going to increase the concentration of nitrogen, so what you are expecting that the reaction will be in forward direction or a backward direction? Yes. Of course, you are going to increase the concentration of reactant. So the reactant is at a higher potential. The reactant is at a higher potential. So always the things move from higher to lower. Always the things move from higher to lower, higher to lower, higher to lower. Okay, higher to lower. तो फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा. तो जब भी आपसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछें तो आप देख लेना कि हायर पे कौन है और
लोअर पे कौन है. सो इट वुड हेल्प यू अ लॉट, इट वुड हेल्प यू अ लॉट. ओके, फिर आ जाओ आप प्रेशर की तरफ. प्रेशर की जो टर्म है वो गैसेस के लिए यूज होती है. प्रेशर में हमारे पास डिफरेंट केस हो सकते हैं. लेट्स सपोज केस नंबर वन, जब आपका रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा हो. जैसे कि ये रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं. रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं. ओके, सो अब आपका रिएक्टेंट हायर पोटेंशियल पर है, रिएक्टेंट आपका हायर पोटेंशियल पर है. ऐसे केस में अगर तुमने अगर प्रेशर बढ़ाया, हायर टू लोअर चला जाएगा, मींस फॉरवर्ड हो जाएगा, मींस फॉरवर्ड हो जाएगा. देखो मैंने क्या लिखा है. प्रेशर के इंक्रीज करने से इस केस में the reaction moves to the right hand side. What does it mean? It moves forward, forward, forward. Okay, forward. ये दो बलून्स हैं, दोनों कनेक्टेड हैं. ये बलून बड़ा है, ये छोटा है. तो लेफ्ट वाले में एयर ज्यादा है, राइट वाले में एयर कम है. जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे चारों तरफ से, ऑफ कोर्स, तो प्रेशर के अप्लाई करने से ये जो एयर है इट वुड मूव फ्रॉम हायर टू लोअर. ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक इन दोनों बलून का साइज सेम ना हो जाए, तब तक मूवमेंट होती रहेगी. जब साइज सेम हो गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, सो दिस इज मतलब फिर वो रुक जाएगा. ओके, तो यू हैव टू सी कि कौन सा केस कहाँ अप्लाई हो रहा है एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स यू हैव इन द प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड. सो ऑलवेज द थिंग्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ऑलवेज द थिंग्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर. बस ये अपने माइंड में रखो. ओके, तो इस केस में तुम्हारा रिएक्टेंट हायर पोटेंशियल है क्योंकि उसके मोल ज्यादा हैं. अच्छा, दूसरा केस देखिएगा जरा. दूसरे केस में देखो जरा. अब आपके प्रोडक्ट के 4 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3. तो मतलब ये आपका हायर पोटेंशियल पर है ना यार प्रोडक्ट. ऐसे केस का अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो हायर टू लोअर, बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड. ओके, इसी तरह से ऐसा भी आपके पास होगा जिसमें द मोल्स आर सेम. व्हेन द मोल्स आर सेम, कुछ भी कर लो, फॉरवर्ड फॉर, अब कम कर लो, मोल ज्यादा कर लो, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम. क्यों? कि बोथ मोल्स आर सेम, both moles are same. Okay, तो प्रेशर की टर्म में आपको मोल्स कंसीडर करने हैं. प्रेशर की टर्म में आपको मोल कंसीडर करना है. अदरवाइज, अदरवाइज वैसे जो जनरली वो बात कर रहा हो तो वो आप मोल भले ना कंसीडर करो उसमें. ओके, फिर आ जाओ टेम्परेचर पर. देखो टेम्परेचर में यू हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी एंड इट फॉर्म्स प्रोडक्ट. इनकी नेचर होती है ये. जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं करते प्रोडक्ट नहीं बनती है. ये इनकी नेचर है, ये इनकी नेचर है. जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं करते प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोडक्ट नहीं बनता, नहीं बनता. मतलब कि आपने गरम गरम चाय लाके एक ऐसे कमरे में रख दी जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द के चाय ठंडी हो जाएगी? नो, चाय नहीं ठंडी होगी भाई, नहीं ठंडी होगी चाय, याद रखिएगा. ओके, और गर्म हो जाएगी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये चाहता है कि तुम उसका टेम्परेचर कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, टेम्परेचर कम करो ताकि प्रोडक्ट बने, ताकि प्रोडक्ट बने. और तुम तो और उसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो. मतलब तुम उसके ऑपोजिट चल रहे हो, मतलब तुम उसके ऑपोजिट चल रहे हो. तो ऑफ कोर्स द रिएक्शन will be backward, the reaction will be backward. क्यों? कि एक्सोथर्मिक तो ये चाहता है कि तुम उसका टेम्परेचर ड्रॉप करो. तुम तो और बढ़ा रहे हो यार उसका टेम्परेचर, तुम तो और बढ़ाए जा रहे हो यार उसका टेम्परेचर. सो दैट्स द रीजन, सो दैट्स द रीजन. ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सो है या फिर एंडो है. सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम, सो रिएक्शन मूव्स टू लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट. चाय और गर्म होनी शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि चाय ठंडी हो. तो भाई तुम्हें पता था कि यार ये चाय एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज करेगी, तो तुमने तो उसको और गर्म जगह पे लाके रख दिया, और गर्म जगह पे लाके रख दिया. तो अब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि इट्स गोइंग टू रिलीज एनर्जी? बल्कि ये तो एनर्जी को और एब्जॉर्ब करने लग जाएगा.
ओके, ये तो और एब्जॉर्ब करने लग जाएगा एनर्जी को, तो इसलिए आपको ये चीजें कंसीडर करनी है। हाँ, अगर आपके पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ये तो बेहतरीन हो गया यार। आपने आइस को लाके एक ऐसी जगह रखा जो कि ऑलरेडी हॉट है, आइस विल मेल्ट इजीली। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, यू आर गोइंग इन अ फेवर ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। तो देख रहे हो मैंने एंडोथर्मिक में क्या लिखा हुआ है कि अगर एंडोथर्मिक का तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे, मींस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, सेट हो गया। फिर हमारे पास है कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट की जॉब क्या है, पहले तो आप ये देखो कैटलिस्ट की जॉब क्या है। ओके, कैटलिस्ट की जॉब इज टू चेंज द रेट, कैटलिस्ट की जॉब इज टू चेंज द रेट, is to change the rate. It has no effect on equilibrium. कैटलिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, ये कैटलिस्ट नहीं बताएगा, ये कैटलिस्ट नहीं बताएगा। ओके, ये कैटलिस्ट नहीं बताएगा। कैटलिस्ट सिर्फ ये करेगा कि वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ओके, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा वो, लेकिन ये कभी भी नहीं बताएगा कि उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं बताता कैटलिस्ट, इट ओनली इंक्रीजेस द रेट, इट ओनली इंक्रीजेस द रेट। वो रिएक्शन पहले अगर 1 घंटे में हो रहा था, वो रिएक्शन जो पहले अगर 1 घंटे में हो रहा था, तो वो अब रिएक्शन 10 मिनट में हो जाएगा, वो रिएक्शन अब 10 मिनट में हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी, तो ये है। ओके, तो ये है आपके पास, दैट्स द मेन थिंग। ओके, जो आपको पता होनी चाहिए। सही है भाई। तो ये हैं वो फैक्टर्स जिनको, ये हैं वो फैक्टर्स जिनको चेंज करके आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, जिनको चेंज करके आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। सेट हो गया, राइट हो गया। ओके है जी, चलें।